आज हम लोग रिसर्च रिपोर्ट लिखने का तीसरा वीडियो देखेंगे जिसमें हम मिडिल पोर्शन का चर्चा करेंगे. We will see the middle portion of the research writing process. So in the first video, I gave you an outline of what is IMR&D's structure of writing research report. Then in the next video, we saw what are the various preliminary things that should be attached to a research report. And now we will be coming to the middle portion. So the middle part are the Madhya Bhag. This is the text which is the core. This is like heart of the research. So this is most important, like how a heart is important for a human body. So this part of the research report talks about the quality of your research report. So preliminary is an ending part, whatever we discussed about in the preliminary, and the next video will be seeing what are the things that should be given at the end of the report. Those things are merely aids, that something accessories, like how a person use many accessories along with the main dress. So these are the accessories, but the main body of the report is this middle portion. So researchers should give serious thought to this मिडिल पोर्शन. मुख्य भाग अनुसंधान का मूल है. तो ये मुख्य भाग, मध्य भाग है, ये बहुत ही मुख्य भाग है. बाकी हम लोग को जो पूर्व में अंत में जितने हम लोग लिखते हैं वो केवल सहायक है. बट शोधकर्ता को मुख्य लिखित भाग पर गंभीर विचार देना चाहिए. हमारा शोध रिपोर्ट का क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता निर्भर करता है उसमें जो हम इस मध्य पोर्शन में जिस प्रकार लिखते हैं, जिस प्रकार हमें चीज़ों को सजाते हैं, उस पर रिपोर्ट की क्वालिटी बनती है. इसलिए मध्य भाग बहुत ही अहम भाग है रिपोर्ट राइटिंग में. तो सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग के मध्य भाग में हम लोग सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय. तो वी हैव टू टॉक, गिव an outline of the research problem that you are taken up. So what is your research project? What is the problem that you are focused on? And what is the state out of this problem in the country, here or even worldwide? So that should be specified in the introduction along with many more things which I'll be telling you. And most second important is, after giving the introductory view of the research problem, the statement of the problem. What is the exact wordings of your research title should be presented in the introductory portion. So Bharat mein this is there in all the places, especially in India. All the research reports start with this introduction. भारत में शोध रिपोर्ट लिखने के सामान्य शैली अध्ययन के उद्देश्य को स्पष्ट शुरुआत के साथ शुरू होती है. अध्ययन का समस्या का विवरण यहाँ दिया गया है. समस्या का विवरण भी यहाँ देना है. सो हमारा शोध कार्य का समस्या क्या है, इस समस्या की भारतवर्ष में आज की स्थिति क्या, आंकड़ों प्रस्तुत करना पड़ता है. जरूरत पड़े हमको विश्व लेवल पर भी इसके आंकड़ों देना है. और इस समस्या का एग्जैक्टली डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, शोध की समस्या का परिभाषित करना बहुत आवश्यक है, जो इस पोर्शन परिचय में रहेगा. अब हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन या परिचय में किन किन चीजों पर ध्यान देना है. सबसे पहले है समस्या का बयान, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. दिस इज द एग्जैक्ट टाइटल ऑफ योर रिसर्च रिपोर्ट. समस्या का बयान में हम अपना शोध की विषय को परफेक्टली प्रॉपर वे में लिखते हैं. देन नीड फॉर द स्टडी, अध्ययन की आवश्यकता क्या है. कोई भी अध्ययन करते हैं, हम कुछ उद्देश्य पूर्ण करते हैं और कुछ की आवश्यकता होती है. So without need, nobody will do the research. Now the entire world is running around in finding the vaccine for COVID-19. Why?
the need for the study, because it is taking away the lives of so many people, and in order to save the humanity it is necessary to invent that vaccine. So ऐसे ही कोई भी अध्ययन का एक आवश्यकता होती है. मान लीजिए हम यहाँ हिंदी में दूसरा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ. हमारा समाज में, सोशल साइंस से मैं दे दूंगी, हमारा समाज में भ्रूण हत्या बहुत अधिक हो रहा है. तो हम इस एक अध्ययन कर रहे हैं, इस समस्या और समाधान के बारे में एक शोध कार्य कर रहे हैं. और इसमें मेरा अध्ययन की आवश्यकता क्या है? फ्यूचर, स्पेशली लिंग समानता बहुत ही आवश्यक है. इसके बिना समाज बिगड़ जाएगा, सब चीज सामान्य से हटके रहेगा. इसलिए जेंडर इक्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इस चीज के लिए भ्रूण हत्या को रोकना बहुत ही आवश्यक है. सो हम इस अध्ययन की आवश्यकता में लिखेंगे, ये पूरे हम आंकड़ों देंगे. तो क्यों ये जरूरी है? आज इसमें लिंग असमानता कितना है, तो अगर फीमेल फिटस को डिस्ट्रॉय किया जाता है, फ्यूचर में क्या रहेगा, ये सब रखे. इसलिए ये आज इस आवश्यक है. इसके कारण और समाधान के बारे में ढूंढ के बाहर लोगों को बताना बहुत जरूरी है. दैट इज नीड फॉर द स्टडी. देन स्कोप ऑफ द स्टडी. आप स्टडी करके क्या करें, कितना दूर तक, अध्ययन का दायरा क्या है, कितना दूर तक हम इस अध्ययन में कर देना चाहते हैं. क्या मैं ये भ्रूण हत्या केवल झारखंड में करना चाहती हूँ, इंडिया पर करना चाहती हूँ, साउथ ईस्ट एशिया पर लेवल पर करना चाहती हूँ, या कोई छोटा से एक समाज में करना चाहती हूँ? सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ द स्टडी. और इस स्टडी में कितना गहराई तक मैं जाऊंगी, कितने, what is the depth in which I will be studying this. So all these things should be mentioned under the scope of the study. Whatever is your research, the research problem, you have to explain here the scope of the study. Then next is objectives या उद्देश्य है. उद्देश्य पर हम कब आते हैं, तो उद्देश्य हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड रहता है. दिस इज रिलेटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. नॉर्मली objective, main broad objective is first written, and it is very difficult to explain everything within one broad objectives. So we used to write specific objectives, breaking the broad objective into different steps. तो एक मुख्य उद्देश्य दिया जाता है जो हमारा रिसर्च समस्या से निकट है. बट इस ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, बड़ा उद्देश्य से हमको रिसर्च कार्य करना मुश्किल होगा. इसलिए उसको तोड़ के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, एक एक छोटे छोटे उद्देश्यों को लिखते हैं, तब जाके हमारा तो शोध कार्य कंप्लीट होगा. So I want to give one example for this. So you want to find out what is the relationship between the health indicators and lifestyle of people. लोगों को जीवन शैली और स्वास्थ्य सूचकों के बीच में क्या संबंध है, ये जानना चाहते हैं. अब ब्रॉड ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे, just you will be writing that what it is to find out the relationship between the health indicators and the lifestyle. ठीक है. इससे आप कैसे आगे बढ़ेंगे, बहुत मुश्किल होगा. इसलिए आपको काम आसानी से पूर्ण रूप से सक्सेसफुली करने के लिए इस बड़े उद्देश्य को छोटे छोटे उद्देश्यों में, टुकड़ों में तोड़ना है. सो फर्स्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी, आपको उसको ब्रेक करना है. बड़ा ऑब्जेक्टिव है, उसमें फर्स्ट वर्ड क्या हम यूज किए हैं, हेल्थ, लाइफस्टाइल. तो लाइफस्टाइल के अंदर आप क्या क्या करने चाहते हैं, उद्देश्य है. तो पहला स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, हम लोग को लाइफस्टाइल के बारे में जानना है. तो जो भी सैंपल ग्रुप आप लेंगे उसका लाइफस्टाइल के बारे में जानना. देन सेकंड ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, हेल्थ इंडिकेटर्स को जानना, दैट इज बीएमआई को निकालना, उनकी बीपी मेजर करना, उनका विभिन्न डिजीजेस के बारे में, क्या डिजीज में आप सफर कर रहे हैं, ये सब के बारे में जानना है. तो ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव. देन थर्ड में जाके अब हम लोग देखेंगे,
तो ये दोनों उद्देश्यों को जोड़ के तीसरा, जिस पर हम अपना मेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। तो टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द हेल्थ इंडिकेटर्स एंड द लाइफस्टाइल। इस प्रकार उद्देश्यों को मध्य भाग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मान सकते हैं। The objectives is the very important aspect of a study, and this is found in the introductory portion. Then hypothesis, हल परिकल्पना, आपका ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है परिकल्पना में, परिकल्पना क्या है। सो जैसे उद्देश्य है तुरंत उसके साथ नेक्स्ट आएगा परिकल्पना। Hypothesis follows the objectives. For each objective, what is your hypothesis? That should also be written in the introduction. Then last is the limitations of the study. Anyway, any study that you are doing cannot be done in totality. There may be so many limitations to the person's number, area, so many age, many criteria are there. So we have to write what are the limitations of the study. Then next we will see after the introductory chapter comes the review of literature. So in review of main source, what is the review of साहित्य की समीक्षा? So हम तो आपको इसके बारे में भी पहला वीडियो में बताएं। तो साहित्य की समीक्षा अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, that is you will be studying so many materials related to your study area of the problem you have chosen for your study. So to do a research work, you should have in-depth knowledge of the subject. For that, you have to refer to many materials which you will be getting idea as to how to proceed with your research. तो साहित्य समीक्षा में हम अपना समस्या से संबंधित विभिन्न लिटरेचरों को स्टडी करेंगे। ये सब हो सकता है एक किताब, बुक्स, जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स। बहुत लोग अपना कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे आपके जैसा PhD करने वाले होंगे, थीसिस, PhD थीसिस, डिफरेंट लेवल्स का थीसिस होगा। देन एनसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी, एक तो डिफिनेशन भी रखते हैं, तुरंत आपको डिक्शनरी चेक करना पड़ेगा। देन रिसर्च रिपोर्ट, छोटे रिसर्चेस का रिपोर्ट्स। देन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आंकड़ों मिलता है, इसके बारे में भी आपको अर्लियर वीडियोस में बताएं मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स कितना इंपॉर्टेंट है। सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, you will be studying different materials like this: books, journals, conference papers, thesis, encyclopedias and dictionary, research reports, magazines and newspapers. So all these things should be put in a proper format in review of literature. If time permits, I'll be taking out a video on how to write a review of literature. In that I'll be going in detail with this. So how much of each thing should be present is given in this diagram. आप इस डायग्राम को देखिएगा जो इन्वर्टेड ट्रायंगल है, इसमें देखिए इन सब में से किस स्टडी कितना बनना चाहिए आपकी रिव्यू ऑफ लिटरेचर का पार्ट में। सो जो आपकी स्टडी से बहुत ही ब्रॉड एरिया में है, तो आप कुपोषण के बारे में जानना चाह रहे हैं झारखंड में, तो टाइप्स ऑफ व्हाट इज पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्या क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, ऑल दिस थिंग्स दैट विल बी अंडर ब्रॉड इश्यूज। तो जो बहुत ही बड़ा समस्या है इसे। देन स्टडीज विथ ओवरलैप विथ योर रिसर्च, जो आपकी रिसर्च से करीब नियर बाई है, विच ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, वैसे चीज उससे थोड़ा कम ही मिलेगा आपको, वो यहाँ रहेगा। The next studies that are directly related to your investigation, आपके जैसा सेम स्टडी कोई और क्षेत्र में किया होगा, आप ही का क्षेत्र में किया होगा, तो आप खुद ही चूज नहीं कर सकते हैं उसको। तो what is the study, who has done that? A study which is very similar to this. तो योर फाइंड, आप एक स्टडी करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर फर्टिलाइजर है, उर्वरक है,
तो कोई मैन्यूर है जो खेत में प्रयोग करने से फसल बढ़ता है, तो आप अपना एरिया में स्टडी करना चाहते हैं, सेम उर्वरक सेम चीज दूसरे फील्ड में कोई और किसान रिसर्चर ने किया है, तब वो भी आपको नियरेस्ट इन्वेस्टिगेशन बन जाता है। सेम स्टडी है लेकिन खाली ये कोई और किया है, किसी और जगह पर किया है, तो वो बनेगा इस पोर्शन में। तो वो आपको बहुत कम ही मिलेगा, वो इधर रहेगा, उससे थोड़ा अधिक मिलेगा, उससे बहुत ज़्यादा बहुत ही नियर बाई चीज और बहुत ब्रॉड इश्यूज बनेगा सबसे दूर में, लेकिन उसकी भी कम रहेगा। तो यही चीज है। इस प्रकार रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपके इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट पोर्शन है मिडिल पोर्शन का, और रिसर्च रिपोर्ट का है। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर से रिसर्च में आप रिव्यू स्टडी करते हैं, साहित्य की समीक्षा करते हैं, आप अपना रिसर्च करने का आपका रास्ता दिखाई देने लगता है। इसलिए इस चीज को जितने ज्यादा रिव्यूज पढ़ सकते हैं करके उसको लिख के इस पोर्शन में डालना इम्पोर्टेंट है। Then next comes the middle portion, methodology, कार्य प्रणाली। आपने अपने रिसर्च को किस मेथड पर, किस सैंपल से और कैसे आंकड़ों प्राप्त किया और आंकड़ों से साथ क्या करेंगे, इस चीज को दिया रहता है मेथडोलॉजी में। सो मेथडोलॉजी टेल्स, कार्य प्रणाली में आपको तथ्य का स्रोत क्या है बताना जरूरी है। सो अंडर मेथडोलॉजी चैप्टर what are the various things that will be coming is listed out here. First is the sources of data. तो आपको एक ऑलरेडी वीडियो आ चुका है सोर्सेस ऑफ डेटा में, तो आपको इसके लिए बहुत ही शॉर्ट में मैं बोलूंगी। आई बी टेलिंग इन शॉर्ट विद दिस, वी हैव टू से वेदर वी आर बेस्ड ऑन, वी आर आवर रिसर्च इज बेस्ड ऑन प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा और कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्या हम प्राथमिक स्रोत को यूज करते हैं, द्वितीय स्रोत को यूज करते हैं, या दोनों का मिलकर यूज करते हैं, इस चीज को मेंशन करना है। Then description of the tool used for data collection. So research depends on data. It may be experimental data या field data. Data may be from anybody. तो आप परीक्षण करके, लैबोरेटरी में परीक्षण करके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं या फील्ड में परीक्षण करके करते हैं, लेकिन जो भी हो, रिसर्च मीन्स डाटा कलेक्शन। तो वो डाटा कहाँ से कैसे कलेक्ट करेंगे, व्हाट इज द टूल। If it is experiment, you have to explain the experiment here, what is the device that you are using. You have to explain the equipment. Then what are the various quantities, measurements that you will be taking, that you have to write. That is for experimental research. Then experimental research in field studies. So where you are going to collect data, are you going to use observation method, interview method, scheduled interview, unstructured interview, questionnaire, what is the method. So that tool is description of the tool used for data collection. That means आप क्या यूज करेंगे जिसके द्वारा आप दिस टूल के द्वारा आप आंकड़ों को संग्रहण, तथ्य का संग्रहण करेंगे, इसके बारे में यहाँ मेंशन करना। आपका अगर क्वेश्चनर ने प्रश्नावली कंस्ट्रक्ट की है, प्रश्नावली को अगेन एक्सप्लेन करना, अनुसूची है, अनुसूची को एक्सप्लेन करना है, साक्षात्कार है तो उसको भी एक्सप्लेन करना है। तो क्या मेथड, और आपकी पूरा क्वेश्चनर का डिफरेंट पोर्शंस क्या है, आप कैसे स्टैंडर्डाइज किए अपना टूल को, टूल में क्या रेटिंग स्केल क्या है, हर चीज डिटेल में देना। दैट इज द डिस्क्रिप्शन के उपयोग के विवरण, आपका टूल का एक एक एस्पेक्ट का विवरण देना जरूरी है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेथडोलॉजी। देन सैंपल ऑफ द स्टडी, अध्ययन का नमूना, फ्रॉम वेयर यू आर ड्रॉइंग द सैंपल्स, व्हाट इज योर पॉपुलेशन, फ्रॉम पॉपुलेशन हाउ यू आर ड्रॉइंग द सैंपल्स। तो आपका समग्र क्या है, समग्र से आप अपना अध्ययन का नमूना किस प्रकार चुने हैं, रैंडम सैंपल से किए हैं, स्ट्रक्चर्ड रैंडम सैंपल। तो एक खुद ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें डिफरेंट मेथड से किस मेथड पर अपना नमूना किए और किन किन एरिया को चुने हैं,
तो सैंपल ऑफ द स्टडी को डिटेल में एक्सप्लेन करें। सैंपल में हम लोग सैंपल की साइज भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर बहुत सारे वर्ग है, हर वर्ग में मेरा कितने संख्या है, हर टोटल मेरा नमूना का संख्या कितना है, व्हाट इज द साइज ऑफ योर सैंपल, एंड if there are subgroups, what is the size of each group. So the entire sample of the study should be in detail explained here. Then next is scoring procedure. तो अगर आप डाटा कलेक्ट या टूल कंस्ट्रक्ट किए हैं, उसमें आप किस प्रकार स्कोरिंग करेंगे। अगर एक्सपेरिमेंट है तो यूनिट्स रहता है, व्हाट आर द डिफरेंट मेजरमेंट्स दैट यू आर टेकिंग, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। If you are using data collecting tools like questionnaire, schedule, interview and other things, so we should see what is the scoring procedure. Scoring procedure क्या है, क्या 5 points Likert scale है, 3 point scale है, क्या मेरा क्वेश्चन आंसर मेरा आंसर येस नो टाइप का है, डायकोटॉमिक है। तो ये चीज यहाँ एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। कभी 5 point स्केल रहते थे, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, नाइदर एग्री, नॉट डिसएग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस प्रकार बहुत सारा। तो 5 point स्केल्स हो सकता है, 3 point स्केल हो सकता है, 7 point स्केल हो सकता है, या येस नो हो सकता है। तो व्हाट इज दी स्कोरिंग प्रोसीजर, इस चीज को मेथोडोलॉजी में मेंशन करना बहुत जरूरी है। देन प्रपोज्ड डाटा एनालिसिस, प्रस्तावित डाटा विश्लेषण। आप डाटा विश्लेषण इस चैप्टर में नहीं करेंगे, लेकिन आपने क्या सोच के रखे हैं, इसलिए आप इसमें डिटेल में इस चैप्टर में दिए आपका डाटा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, किससे मिलेगा, और उनसे आप उसको नंबर में कैसे डालेंगे, आप ये देना जरूरी है कि तब इन चीजों को लेकर आप विश्लेषण कैसे करेंगे। प्रस्तावित डाटा विश्लेषण में हम लोग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल formulas that we'll be using will be explained here. So in proposed data analysis, we'll be explaining about various quantitative and qualitative data, या descriptive or inferential statistics that we'll be using. तो एक प्रिलिमिनरी एक अपना प्लान क्या है, ये डाटा को लेकर मैं क्या करूंगी, इस चीज को यहाँ डालना जरूरी है। सो मेथोडोलॉजी को क्विकली देखते हुए हम लोग देखेंगे। मेथोडोलॉजी चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज वी से दैट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस इज द मेथोडोलॉजी। बट द राइट मेथोडोलॉजी विल एंश्योर सक्सेस टू योर रिसर्च वर्क। सही कार्य प्रणाली से आपका शोध कार्य का सफलतापूर्वक संपूर्ण करना निश्चय रहेगा। इसलिए कार्य प्रणाली चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप तथ्य का स्रोत, तथ्य का संग्रहण कैसे करेंगे, और आपको नमूना कहाँ से मिलेगा, उनसे आप डाटा का स्कोर कैसे करेंगे, और उस स्कोर से क्या करेंगे, इन चीजों को देना है मेथोडोलॉजी या कार्य प्रणाली चैप्टर है। Then next is observation, analysis and interpretation. अवलोकन, विश्लेषण और व्याख्या। आप डाटास को लेकर अभी जस्ट बोले आप क्या करेंगे, इसको लिखना है, तो पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, खाली उसको अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, आप अभी अवलोकन करें, मेरा डाटा ऐसा है, इतने लोग ये परसेंटेज में या नंबर में, फ्रीक्वेंसी में, इसको एक्सप्लेन करना है। और केवल डाटा आप टेबल का रूप में केवल नहीं दे देंगे, चित्रों का रूप में भी देंगे। इस प्रकार पाई चार्ट है, बार चार्ट है, हिस्टोग्राम है, तो यहाँ लाइन ग्राफ है, तो बहुत सारे इधर लाइन ग्राफ है, तो इस प्रकार इधर लाइन ग्राफ है, तो इस प्रकार डिफरेंट चित्रों के द्वारा ही, तो हम लोग कोशिश करते हैं हर टेबल के साथ एक चित्र भी हो, तो ताकि तो हम चित्रों से ज्यादा बात कर सकते हैं आंकड़ों से अधिक। तो आंकड़ों से इसलिए कि चित्र का रूप में और आंकड़ों के रूप में, टेबल का रूप में हम डाटा का अवलोकन करते हैं, और अवलोकन करने के बाद उसको विश्लेषण करते हैं। वी एनालाइज द डाटा,
What is it? What is the death rate? What is the morbidity rate? Which disease is more prevalent? So like this, we'll be analyzing it. You have one data, you have many analysis to it. So then interpretation. व्याख्या में हम क्या करेंगे? In interpretation, we say, yeah, give reason for this observation. What we are observing, what we have analyzed, and in interpretation, we give reason why and what of this data. व्याख्या में हमने जो अवलोकन किए हैं और विश्लेषण किए हैं, उसका कारण, उसका निदान, सब चीज बताते हैं व्याख्या में. कोई भी डाटा लिखते हैं, हमने लिख रहे हैं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ट्यूबरक्लोसिस से डेथ अधिक है, ये हमारा डेथ रेट है 20% डेथ रेट हम लिख रहे हैं. डेथ रेट में 20% बहुत हाई है. तो और विश्लेषण में हम लिखेंगे तो इसमें और भी क्या क्या डिजीजेस रहा, ये किस एज ग्रुप वाले मरे हैं, किस सोशियो इकोनॉमिक, वो सब विश्लेषण है. देन व्याख्या में हम करेंगे क्यों, क्या कारण है, क्या यहाँ कमी रहा, ये चीज देखने को मिल रहा है, क्या कर सकते हैं ताकि इसको हम दूर कर सके. इस प्रकार आप व्याख्या में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे. यही दिस इज द हार्ट ऑफ द रिसर्च वर्क. रिसर्च वर्क की हार्ट है. आपका पूरा अगला क्या इन्फरेंस ड्रॉ करेंगे वो इस पर डिपेंड करता है. इसलिए आंकड़ों को सही रूप में डाटा टेबलिंग करना, ग्राफ करना है और उसकी विश्लेषण करना और व्याख्या करना बहुत जरूरी है. This is the next aspect of the middle portion, which is supposed to be the heart of the study. Then last is summary and conclusion. तो हमारा विश्लेषण बहुत ही लंबा चौड़ा रहेगा. उसमें एक नजर में हमको प्रमुख निष्कर्षों को अलग से लेकर ये लास्ट चैप्टर में डालना है. इसलिए किसी को भी एक क्विक स्टडी चाहिए. कोई आपका रिसर्च में एक जल्दी से एक नजर डालना चाहते हैं, तब तुरंत वो इस चैप्टर में जाएंगे, मेजर फाइंडिंग्स में जाएंगे. So you have to take out the essence of your from your analysis, the essence, and put in the form of major findings. आप रिसर्च क्यों करते हैं? समस्या का समाधान के लिए. इसलिए अनुशंसाएं क्या है, आप क्या अनुशंसाएं करते हैं. तो इफ इट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, आप दवा का रिसर्च करके फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई वैक्सीन फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई मैन्यूर फाइंड आउट कर रहे हैं, न्यू टाइप ऑफ सीड फाइंड आउट कर रहे हैं, न्यू मेथड ऑफ एक सेविंग टाइम एंड एनर्जी करते हैं. तो इस प्रकार कोई भी चीज़ रिसर्च होगा, उसका रिसर्च से फाइंडिंग से आप अनुशंसाएं करना है. सामाजिक शोध में हम लोग समाज की विभिन्न समस्याओं को विस्तार से एनालाइज करके हम लोग सरकार को रिपोर्ट भेजते हैं, अनुशंसाएं भेजते हैं और सरकारी अगला कार्यक्रम में और उन लोग को प्लान में ये सब को डिस्कस करके जरूरत पड़े इसको इम्प्लीमेंट करने में सहायता मिलेगा. इसलिए रिकमेंडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर रिसर्च रिपोर्ट. और हम एंड करते हैं आगे की अनुसंधान के लिए सुझाव देने के लिए. सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्च. While doing research, we always would have felt that, oh, this might have been added, this could have been done in a different area, this could have been done by a different method. These things must have come in our thoughts. So those things we can put in the suggestions for further research. और ये दूसरे रूप में भी हो सकता है. आपको अनुसंधान करने के बाद लगता है ये बहुत ही अच्छा रिसर्च है, इसको और बड़े पैमाने पर करना ज़्यादा लाभदायक होगा, ये आपकी थॉट हो सकती है, वो भी आप देख सकते हैं. तो इस अनुसंधान को अगर आगे कोई आपकी थीसिस को कोई रिव्यू मिलेगा, वो क्या कर सकता है, तो अनेक रिव्यूज पढ़ने वाले मोस्ट लाइकली इस पोर्शन को भी पढ़ते हैं कि इसलिए कि उनको आपका टॉपिक अच्छा लगा, इस लाइन में करना चाहते हैं, तो तुरंत देखेंगे ये क्या आगे का अनुसंधान के लिए क्या सुझाव दिए. सो समरी एंड कंक्लूजन gives the final nutshell of the research work.